सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज फिर से हम लोग सोशल साइंस का गाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था सेक्शन ए गाला पेपर नंबर 1 का। आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है सेक्शन बी। सो सेक्शन बी को हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी जो है वो हमारा 25 नंबर टू 37 नंबर का होगा। और ये जो सेक्शन बी है वो पर क्वेश्चन 22 मार्क्स ईच होते हैं, मीन्स 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सो here we start. Answer the question, answer any 9 questions out of 13 given below. So the 25th question here is, discuss landscape as a component of India's nation heritage. So the answer will be, beautiful landscapes such as Himalaya are formed due to the different shapes of land. Himalaya is endowed with mountain peak covered with snow, brimming rivers, useful vegetations and minerals. It has the forest of Terai and pilgrimage places like Amarnath, Badrinath, Mansarovar and Kedarnath. It has mountain peaks like Mount Everest, Mount Godwin, Austin and Nanda Devi. Himalaya has been a part of natural heritage of India. It has deeply affected community living, way of living and behavior of people. Since the ancient time, Himalaya has been revered as a sacred place for the people of India. अब मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा कि आप जब कभी भी 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर लिखे, राइट द आंसर इन पॉइंट्स, जिससे आपका प्रेजेंटेशन एक बेहतर होगा। सेकेंड थिंग, जो भी पर्सन आपका पेपर चेक कर रहा है उसे आपका पेपर अट्रैक्टिव एंड पैटर्न वाइज प्रॉपर पेपर लगेगा। Let's move further with the very next question. The very next question is 26th number, which is write about Aryans. Aryans के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अब मैं आप सबको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर मीन्स, ये आंसर आप राइट अबाउट आर्यन कल्चर, वो जो 3 मार्कर में आए उसमें भी आप इस आंसर को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक में आर्यन के बारे में दिया है बट कल्चर एंड आर्यन मिक्स है। आप ये आंसर आर्यंस, राइट अबाउट आर्यंस और कल्चर दोनों में आप लिख सकते हैं। So let's read the answer. The people belonging to the Nordic Aryan were the creators of the Aryan culture civilization in India. The Aryans were more developed people than their contemporaries. They adopt the good ways of life of their other tribals in India and formed a harmonious culture. They were nature lovers. They worshipped trees, rivers, mountains, the sun, the wind, and rain, and composed rituals hymns for seeking their blessings. Recitation of Vedas, performing yajna become a part of their religious rituals. Initially, they lived in densely populated Sapta Sindhu region, which is in northwest India, which is called Aryavrata. Subsequently, Aryavrata extended up to Mithila and Vindhyachal in the post-Vedic period. Their vast area was recognized by names such as Bharatbhumi, Bharatkhand, and Bharatvarsh after the name of the king Bharat. The rich composite culture of India is the heritage of the Aryans. Okay, so this was the answer of the Aryan, information about Aryan. Let's move further with the 27th one. What is Biwad Ikt? IKT, or I can say Ikt. So answer will be the Patola of Patan. What is known as the Ikt? So you can tell Patola of Patan is known as Biwad Ikt. This type of silk sari is designed in such manner that it can be worn on either side. ये साड़ी इस तरह से होती है कि आप दोनों साइड से पहन सकते हैं। द पॉपुलर सेइंग इज, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं।
इट मीन्स कि पटोला फट जाए, आपका मटेरियल जो है वो फट भी जाएगा, बट जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, वो जो है वो आपकी मीन्स बिगड़ेगी नहीं, विच मीन्स दैट द डिज़ाइन लेड इन पटोला shall never fade even if the cloth may be torn. Let's move further with 28th one. Write about Lord Shiva. नटराज, यहाँ पर नटराज ब्रैकेट में क्यों दिया है वो हम जानेंगे आंसर में. It is believed that Lord Shiva is the originator of the art of the dance and therefore he is called नटराज. नटराज उन्हें इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो लॉर्ड शिवा है वो ओरिजिनेटर है ऑफ आर्ट एंड डांस. It is believed that the pleasure of the people on the earth and to teach them this art, Lord Shiva brought down dance from the स्वर्ग heaven. स्वर्ग यानी हेवन, वहाँ से लॉर्ड शिव जो है वो लाए थे लोगों को टीच करने के लिए, समझाने के लिए कि कुछ ऐसा भी आर्ट फॉर्म है. इसी वजह से उनका नाम यहाँ पर नटराज है, मीन्स हमने नटराज रखा है. लेट्स मूव फर्दर. 29th नंबर. राइट अबाउट चांपानेर. चांपानेर ये ऐसी जगह है, आप सब ने सुना होगा कि आप जब कभी भी पावागढ़ विजिट किया होगा आपने, वहाँ पर आपने देखा होगा जो पर्वत है, जो माउंटेन है, वो तो पावागढ़ है, बट नीचे का जो सिटी जो है उसे लोग कहते हैं चांपानेर. Champaner Pavagadh Archaeological Park, a UNESCO World Heritage Site, is located in Panchmahal district in Gujarat, India. It is located around the historical city of Champaner. मैंने बोला कि वो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है और जो पूरा पर्वत है वो लोकेटेड है चांपानेर सिटी से, which was founded by वनराज चावड़ा. वनराज चावड़ा जो चावड़ा डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने 8th सेंचुरी में पावागढ़ चांपानेर का फाउंड किया था, खोजा था. लेट्स मूव फर्दर. 30th नंबर. हाउ टू पीपल हाउ डू इट्स व्हाट द मिस्टेक. हाउ डू पीपल स्पॉइल स्लैश डैमेज अवर हेरिटेज. पीपल जो है वो हमारे हेरिटेज को स्पॉइल कैसे करते हैं. सो इसका आंसर होगा मोस्ट डैमेज टू अवर हेरिटेज इज कॉज्ड ड्यू टू ignorance and lack of awareness on the part of the people. Without realizing the damage that they are causing, students visiting a historical monuments scribble their names or draw figures. We understood manufacturing activity that cause air pollution. We pollute rivers, streams, and lakes. We indiscriminately cut trees and kill the wildlife. We damage, destroy, steal the artworks, paintings, and antiquities. We litter around the tourist spots. That was the answer of the 30th number. So let's move further with the 31st. A time has come for us to think about the wildlife which are one on the verge of extinction. पहले तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये लाइन का मतलब समझिए, तभी आप इसका आंसर लिख पाएंगे. क्योंकि कुछ वर्ड्स देखने, जैसे कि आपने देखा वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वाइल्ड लाइफ से आप आंसर लिख पाएंगे, बट उतना परफेक्टली नहीं जितना आप समझ के इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे. तो इसका आंसर होगा टुडे डेंजर प्रिवेल्स ओवर मैनी वाइल्ड एनिमल्स अबाउट देयर एक्सिस्टेंस. These are getting extinct. Cheetah has been extinct from the Indian forest. हमारे इंडियन फॉरेस्ट में कोई भी इंडियन जगह पर चीता फिलहाल मीन्स प्रेजेंट टाइम पर एक भी चीता प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ द लायन, टाइगर, स्नो, vulture, pink-throated duck, crane, owl, chilotro, which is musk deer, hangul, alligator, ganga dolphin, sea turtle, and rhinoceros is in danger. In Gujarat, the existence of lion, tiger, leopard, wolf, and waterfalls is in danger. Okay, so ये आंसर मैं आप सभी को पहले बता दूं कि ये आंसर मैंने कट शॉर्ट करके टेक्स्ट बुक में से इसी पॉइंट में से लिखा है, क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा है 2 मार्कर
ऑलराइट, हमें यहाँ पर पूछा है 2 मार्कर के लिए, बट टेक्स्ट बुक में आपका जो है वो मे बी 3 मार्कर में यूज़ हो सकता है। सो इफ़ यही क्वेश्चन कुछ मीन्स ट्विस्ट करके आपको पूछा जाए 3 मार्कर में, तो आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड करके या फिर टेक्स्ट बुक का ऐड करके आप इसे 3 मार्कर में लिख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। The 32nd one, explain the following terms. The first one is water crisis and the second one is water management. यहाँ पर टर्म्स को समझाने की बात की गई है। इसका मतलब आप डेफिनेशन लिखेंगे या इसका मीनिंग लिखेंगे, नॉट मच। बट यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट के बारे में अच्छा पॉइंट अंडरस्टैंड आप कर सकते, समझ सकते, इसीलिए मैंने ये लिखा है। आप इस पॉइंट को कट शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। सो वाटर क्राइसिस क्या होता है? वाटर क्राइसिस इज द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स टू मीट द स्टैंडर्ड वाटर डिमांड। जो कोई भी जगह पर, प्लेस पर, एरिया पर, विलेज पर जहाँ पर वाटर, फ्रेश वाटर की तंगी होती है, उस सिचुएशन, उस कंडीशन को हम कहते हैं वाटर क्राइसिस। और वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, prevent the pollution of reservoirs, avoid wastage of the filtered water, use water sparingly. The pipeline supplying water should not be allowed to dry up to the avoid pollution, and in case of any damage, it should be repaired immediately to prevent the water from following away, etc. are important things. Okay, सो ये था 32 का नंबर। आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट मतलब इन शॉर्ट कि वाटर की एक बूंद भी वेस्ट ना हो, उसका मैनेजमेंट जो करते हैं, उस वाटर मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है। लेट्स मूव फर्दर विद द 33। व्हाट इज मिनरल? एक्सप्लेन। व्हाट इज मिनरल यानी ये आपको वैसे तो बता रहे हैं कि मिनरल क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, बट मैं आपको बता दूं 2 मार्कर में सिर्फ डेफिनेशन या मीनिंग लिखने से आपको 2 मार्कर के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उसके लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक जो है ये आपकी हुई डेफिनेशन। ये एटलीस्ट 1.5 मार्कर के लिए अप्लाई हो सकती है, बट बाकी के हाफ मार्क्स का क्या? तो बाकी के हाफ मार्क्स के लिए आप जो है इन पॉइंट्स में से भी कुछ ले सकते हैं, विच आर आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा are minerals, mercury, petroleum, etc. Liquid minerals and natural gas are gaseous mineral. The type of the mineral that are available from the interior of the earth depends on how the crust of the earth originated. Example, originated, that is iron, copper, zinc, gold, silver, etc. ये सब है। तो देखिए मिनरल तक जो है मैं आपको बता दूँ ये डेफिनेशन है। फिर गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा वो जो है वो सॉलिड मिनरल है, मर्क्यूरी, पेट्रोलियम लिक्विड मिनरल है, और नेचुरल गैस है वो गैशियस मिनरल है। ठीक है, सो अब आगे फॉरवर्ड होते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड विच इज़ 34th वन। जो 34th वन है वो मेंशन द स्टेटस वेयर मैंगनीज इज अवेलेबल इन इंडिया। तो मैंगनीज इज इंडिया में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? सो उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा जो है वो मेजर स्टेट है जो मैंगनीज प्रोड्यूस करते हैं। और बिसाइड आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात में भी मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। The very next one is 35th. Silk production has a long tradition. Explain the statement. तो सिल्क प्रोडक्शन का ये बहुत थोड़ा बड़ा है, इसे आप 3 मार्कर में भी कंसिडर कर सकते हैं, बट 2 मार्कर में इसको थोड़ा कट शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं। सो इसमें थोड़ा बहुत मेन जो है वो यही है कि चाइना के बाद जो है इंडिया सेकंड रैंक पर आता है। एंड इंडिया को पास मीन्स इंडिया जो है, इंडिया हैव 4 टाइप्स ऑफ सिल्क्स विच आर 4 मलबरी सिल्क, एरी सीड, तसर सिल्क एंड मुगा सिल्क। सो ये 4 टाइप है। फिर कौन कौन से स्टेट्स जो है मेजर स्टेट्स जो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में लिखिएगा, और कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। तो आपका 2 मार्कर के लिए ये क्वेश्चन परफेक्टली सेट हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर विद द 36th वन। What is small scale industry? Explain with examples.
देखिए आप सबको पता है कि जहाँ पर स्मॉल टीम होती है, स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं या फिर टीम होती है, उस चीज़ को, उस इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है शुगर एंड जैगरी। आप इसमें और एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 मार्कर के लिए थोड़ा छोटा है। मुझे पता है कि मैंने इसमें शॉर्ट लिखा है, बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आप इसमें ऐड करके कुछ अपने मन से लिखेंगे तो वो डेफिनेटली आपको याद रहेगा, और एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स में भी आपको ये चीज़ आती है, सो आप सिंपली उसे माइंड में क्लिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इस 37, यहाँ पर हमें एक इमेज दी गई है। तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन दैट अवार्ड क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो ये कौन सा सिंबल है, ये कौन, और इसे कौन सी क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिली है? तो ये है इको मार्क। इको मार्क जो है वो सोप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेंट्स, पैकिंग मटेरियल, कलर केमिकल, पावर कंटेनिंग, बैटरी, कॉस्मेटिक, लेदर, इन सारी चीज़ों में जो है ये इको का मार्क यूज़ होता है। इको का मार्क आप यूज़ मीन्स आप देखेंगे तो आप अपनी सोप, डिटर्जेंट और ये सारी चीज़ों में देखेंगे। सो ये था सेक्शन बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ डिजिटल मैथ्स। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नॉट ओनली सोशल साइंस, हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स पर आप मैथ्स एंड साइंस के गाला पेपर सोल्यूशन देख पाएंगे, आपको मिलेंगे श्योरली। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स, सब्सक्राइब इट, शेयर इट टू ऑल द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो ईजीली इससे समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।